the mighty cliff. You put me on the rock to stay. You picked me up from the mighty cliff. You put me on the rock to stay. You picked me up from the mighty cliff. You put me on the rock to stay. Oh, my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name, and He gave me a brand new start. Oh, my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name, and He gave me a brand new start. You picked me up from the mighty place. You put me on the rock to stay. You picked me up from the mighty place. You put me on the rock to stay. You picked me up from the mighty place. You put me on the rock to stay. Oh, my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name, and He gave me a brand new start. Oh, my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name, and He gave me a brand new start. He is the road. He is the road. Jesus is the rock on whom I stand. Whoa, He is the road. He is the road. Jesus is the rock on whom I stand. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. वो तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. वो
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रभु ईश्वर पर हर जहां तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। यीशु तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु। आते हैं तेरे पास सर झुकाए हम, घुटनों पर आते हैं, लाते हैं आराधना। आते हैं तेरे पास सर झुकाए हम, घुटनों पर आते हैं, लाते हैं आराधना। तू है योग्य, योग्य, योग्य प्रभु। सर्वश्रेष्ठ है तू ही मेरे प्रभु। तू है योग्य, योग्य, योग्य प्रभु। सर्वश्रेष्ठ है तू ही मेरे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना पाकरों से भर दे मुझे, विनती है ये मेरी, तेरे लहू से शुद्ध कर दे मुझे। ये मेरी प्रार्थना पाकरों से भर दे मुझे, विनती है
योग्य प्रभु सर्वश्रेष्ठ तू ही मेरे प्रभु तू है योग्य 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 प्रभु सर्वश्रेष्ठ तू ही मेरे प्रभु योग्य Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth bow down before Him, for He is exalted. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. Our hope is God Almighty. His love is greater than all. Lift high to God of heaven. Give all the honor. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. And He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever. Our God shall reign. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh.
We look to Yahweh, Yahweh, forever, Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. And He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever. हमेशा राज करेगा, हमेशा राज करेगा सदा के लिए, हमेशा 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 राज करेगा, हमेशा राज करेगा सदा के लिए, हमेशा हमेशा प्रभु। सदा lift your names higher. You shall reign forever, God. You shall reign forever. You are worthy, Jesus. He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever, and He shall reign forever, and He shall reign forever and ever, our God. Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। कितनी सुंदर तरह से प्रभु की स्तुति और आराधना हुआ। भाई कुबेर ने हमें प्रभु की उपस्थिति में लेके गए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए और भाई कुबेर का भी धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु धन्यवाद कि इस अवस्था में हमारे साथ रहने के लिए। आमीन। सो ये सबसे अच्छी बात है कि इन दिनों में हम प्रभु के साथ मुश्किलों की घड़ियों में भी प्रभु के साथ हम बढ़ रहे हैं। प्रभु हर वक्त हमारे साथ है। कहने का मतलब ये है कि हर दिन हम सूचना की ओर देखते थे। हर दिन क्या है कि हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, कि हम लोग मिल रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हाँ, हम लोग घर पे या एक जगह पे आके मिल नहीं सकते कलीसिया में, इसलिए हम लोग घर से ही जुड़ सकते हैं ऑनलाइन सर्विस में। और हर दिन 6:30 बजे ये सर्विस होती है। तो प्लीज़ आप सब लोग जुड़िए उसमें और प्रभु का आशीष पाइए। और दूसरी बात, दूसरी सूचना इस तरह से है कि हम देखते हैं कि ना शुरुआत की है हम लोगों ने संडे सर्विस। बहुत लोग नहीं मिल सकते, सिर्फ 50 लोग मिल सकते एक सर्विस के लिए। इसलिए हम लोगों ने 2 सर्विस रखे, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक हिंदी और 11 बजे से 12:30-1 बजे तक इंग्लिश रहेगा। तो यहाँ पे आते वक्त प्लीज़ आप आ सकते हैं जो भी चाहते हैं। फिर भी आते वक्त मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपना मास्क लीजिए, सैनिटाइजर्स
कीजिए और 2 मीटर के अंतर में चेयर लगी हुई है, कहीं का ना सिर्फ कम लोग मिल सकते हैं। तो आपको स्वागत है कि आप आ सकते हैं यहाँ पे और हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। संडे इतवार की सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और 11 से 12:30 1 बजे तक ये 2 सर्विस रहेगी। तो प्लीज़ इसमें आइए और भाग लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी सूचना ये है कि हम देखते हैं, दूसरी सूचना हर वीक में 2 बार मिडनाइट प्रार्थना करते हैं, मध्यम रात की प्रार्थना, उसको मिडनाइट क्राई बोलते हैं। कि वो समय जो 11 बजे से ना 1 बजे, दिन का अंत होते वक्त और शुरुआत होते वक्त, ये 2 जो घंटा जो समय है, उस समय पे हम प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु के उपस्थिति में बढ़ने के लिए कई लोग अब जूम मीटिंग के ऊपर मिल के प्रार्थना करें, कई लोग 50 तक लोग जुड़ रहे हैं। मंगलवार को हिंदी में होती है और शुक्रवार को इंग्लिश में होती है। तो अगर कोई प्लीज़ जो कोई हमें से जुड़ना चाहता है, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लिंक आपको चाहिए उसकी, हर दिन इस मंगलवार और शुक्रवार की ये लिंक अगर आपको चाहिए, मिडनाइट क्राई जो प्रार्थना होती है उसका आप जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कोई भी एक हमारे पासवान को आप मिलिए या मोबाइल के ऊपर आप रिक्वेस्ट कीजिए, तो हम आप लोगों को वो लिंक भेजेंगे और आप सब लोग मिलके जुड़ सकते हैं। और सब लोग मिलके हम 2 घंटा लगातार बिना रुके प्रार्थना करेंगे, अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अवस्थाओं को लेकर, हमारे जीवन के हम सारी बातों को लेकर हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको किसी की बात की चिंता है या ज़रूरत है तो आप शीघ्र से आप हम लोगों से कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी सूचना हम जब देखते हैं कि है प्रभु की देना, कि वो भी एक आराधना है, प्रभु की देना हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ हमें प्रभु को आदर देते हुए हमारा दशमांश प्रभु को समर्पित करना। और इसके लिए भी सुविधा इन दिनों में सुविधा हम लोगों ने किया है कि आप को आने के लिए नहीं होता है कलीसिया से और देने के लिए नहीं होता है, तो आप जहां है वहां से ही आप दे सकते हैं। कि ऑनलाइन थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, NFT या चेक के द्वारा आप कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर हम भेज रहे हैं, अगर आपको उसके लिख सकते हैं या अगर आपको चाहिए उसकी पूरी ना इंफॉर्मेशन, तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे ताकि आप उसमें भी भाग ले सके। प्रभु का वचन कहता है कि प्रोव्स चैप्टर का 3 अध्याय में कहता है 9वां 10वां वचन, जो कोई पहला फल जो प्रभु के लिए आदर देते हुए चढ़ाता है, तो प्रभु उसका आदर को स्वीकार करके उसके जीवन में भरपूर आशीष करता है। हम लोग देखते हैं कि मलाकी का अध्याय में भी, वहाँ पे भी देखते हैं कि जब आप आदर दे कि प्रभु को अपना चढ़ाते हैं, कि प्रभु आपको इतना आशीष करता है, स्वर्ग के पाटों को खोलकर आशीष करेगा कि आपके जीवन में रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। इतना परमेश्वर ने वादा किया है, उस वादे को हम याद करेंगे और सब लोग उसमें भाग लेंगे। तो ये समय है कि प्रभु का देना, आप प्रभु का चढ़ाव प्रभु के लिए हम देना, तो हम सब लोग इसमें भाग लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, मेरे साथ सब लोग जो जुड़े उस सब लोगों को प्रभु आशीष करे। व्यर्थ समय अपना नहीं करते हुए हम अपने प्रभु का वचन के लिए तैयार हो जाएंगे। कि हम जब तैयार होते नई अपेक्षाओं को लेकर हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के साथ नई बातों को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में नई बातों से, नई योजना से हमारे जीवन में बात करेगा। तो प्रभु का दास पास्टर मैथ्यू है जो आकर आगे प्रभु का वचन में सुनाएंगे, वो प्रभु के वचन में ले जाएंगे, उसको हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे और हम तैयार हो जाएंगे प्रभु का वचन के लिए, जो प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा। आप सब लोग उसके साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। आइए हम पाशबान का स्वागत करेंगे ताली बजाकर। Hallelujah. Thank you very much. Thank you to see you back in the church. But we all got to be very, very careful. लेकिन हम सबको बहुत सावधान रहना है। These are the last days. और ये अंतिम दिन चल रहे हैं। And God doesn't want us to behave foolishly. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मूर्खता में रहे। God wants us to learn to behave wisely. और परमेश्वर चाहता है कि हम होशियार रहें। So follow the instructions. और हम जो नियम देते हैं, Always wear the mask.
हमेशा मास्क पहने रहे Don't shake hand with anybody, especially unknown people. और जो लोग को आप पहचानते नहीं उनके साथ में हाथ मत मिलाइए। And keep a distance 2 meter. Egnal and Thakur, you are sitting too close. आपको 2 मीटर की दूरी रखना है। आप बहुत नजदीक Always maintain a distance. और हमेशा इतनी दूरी बनाकर रखिए। Because we don't know where that person is gone. हमें पता नहीं कि जो व्यक्ति हमारे सामने वो कहाँ से आया है। And wash your hands as often as possible. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने हाथों को आप साफ In सुथरा the church, रखें। we have a meter to test your temperature and to test your oxygen level. और चर्च में हम सैनिटाइजर वहाँ पे है और ऑक्सीमीटर आपको लगाए So we चेक करने के don't लिए। want any of you to become sick by coming to church. We want you to be blessed by coming to church. हम नहीं चाहते आप में से कोई भी कलीसिया में आए बीमार होकर घर जाए। हम चाहते हैं कलीसिया में आप आए sick- और आशीष पाकर जाए। Because sickness and diseases are not from God, they are from the devil. और जो बीमारियां हैं ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान से है। Our sin and disobedience give room for sickness and disease to enter in our life. और जो हमारे बीमार जो है वो मौका देती है उनको और भ्रष्टाचार हमारे जीवन में आता है। Holy Spirit will not bring sickness. पवित्र आत्मा हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं In लाएगा। fact, Jesus promised यीशु ने ऐसा वादा He किया will send His word and heal us from all our disease. और उसने वादा किया कि उनके वचन भेजेंगे हमारे हर तरीके के बीमारियों को चंगाई Because करेंगे He is a Jehovah Rapha. क्योंकि वो यहोवा रफा है। And Jesus took 39 stripes on His back वो यीशु मसीह उनके शरीर के ऊपर 39 कोड़े खाए to bring healing for all our sickness. हमारे हर तरीके के बीमारियों को चंगाई करने के लिए। Science says root cause of all the thousands of sickness is the 39 sickness. और विज्ञान कहता है कि जितने भी बीमारी संसार में फैल रही है उसका एक मूल जड़ है वो है 39 कोड़े। Before the scientists found that, और विज्ञान ने उसको खोज करने के पहले 2000 years before, 2000 साल के पहले Jesus took that 39 stripes. और यीशु मसीह ने 39 कोड़े अपने पीठ के ऊपर So लिया। we as Christians, we must always speak that by His stripes I am healed. और हम विश्वासी होने के कारण कहना चाहिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। No sickness, no coronavirus, no poverty, no foolishness will overtake my life. और कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं, कोई मूर्खता वो मेरे जीवन को नियंत्रण में Every नहीं day लेगी। morning you must pray and say, I live under the shadow of the Almighty God. हर दिन कहना चाहिए मैं महान परमेश्वर के छांव में रहता The हूँ Lord is my shepherd. और प्रभु मेरा चरवा है Lord is my defense and my protector. और यहोवा मेरे सुरक्षित करता है और What- मुझे संभालता What है man can do to me? और मेरे लिए विरोध में वो मनुष्य क्या करेगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, your faith matters the most. आपका विश्वास सबसे बड़ा काम Those करता who है। have fear, जिनके अंदर भय they है get sick very quickly. और वो झट से बीमार पड़ जाते हैं Those who have fear, they suffer loss. और जिनके पास में भय है वो उनका Those लॉस who होता have है fear, they will not succeed in life. और जिनके पास भय है वो कामयाब नहीं All the पाएंगे। good things from God is meant for those who have faith. और जो भी अच्छी बातें होते परमेश्वर से उनको सिर्फ ये काफी है विश्वास। So you have to learn to walk by faith every day. हर दिन विश्वास में चलने के लिए सीखना चाहिए। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। You know, if there is no faith, then life is meaningless. अगर विश्वास नहीं है जीवन बेमतलब का है। If there is no faith, you are become the victim of every situation and circumstances. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है आप हर अवस्था के एक गुलाम बन जाएंगे, When एक there is कमजोर इंसान faith बन in your जाएंगे। life, और जब विश्वास आपके जीवन के your अंदर होता faith है has power to defeat every sickness. और आपका विश्वास हर तरीके के बीमारियों को नीचे खींच लाता है। No, today I'm going to speak to you about the second coming of Jesus. और आज मैं दूसरा बार यीशु मसीह का आगमन के बारे All में the बताना sign चाहता that हूँ। happens around us says to us that coming of our Lord Jesus, return of our Lord Jesus is very near. और जो भी हमारे इर्द गिर्द अभी जो अनोनी कार्य जो हो रहे हैं, ये एक चिन्ह है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में You know, बताते the हैं। greatest promise in the Bible is the second coming of Jesus. पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा ये वादा है, आज्ञा है First यीशु time मसीह का दूसरा आगमन। first time Jesus came,
पहली बार जब यीशु आए to save us from our sin और हमें हमारे पाप से छुटकारा देने and के लिए, connect us to God हमें परमेश्वर के पास में जुड़ने के and लिए, give us a way to success. और हमें कामयाबी की और का मार्ग देने के The लिए, Lord has come to remove our curse और प्रभु हमारे श्राप को निकालने के लिए आया है, and cancel everything that stands against us जो हमारे विरोध में है उसको सबको रद्द करने के and लिए, to open a way to blessing. और हमें आशीषित करने का मार्ग See, को करने के लिए। prosperity, healing, success, blessing is the right of every child of God. आशीष, उन्नति, कृपा जो हमारी उसके बेटा बेटी होने के नाते हमारा हक है। Jesus saved you to bless you. यीशु आपका उद्धार करवाया आपको आशीष करने के लिए, So we have a blessed life in Christ. और मसीह में हमारा आशीषित जीवन है। But the second time Jesus coming, just not to bless you. जो दूसरा बार यीशु मसीह आएंगे आपको आशीष करने के लिए नहीं, Second time Jesus is coming और दूसरी बार यीशु आ रहे हैं to judge you, आपको न्याय करने के लिए, to judge you about how you use all your gifts and your talent. और ये न्याय करने के लिए आपके गुण, आपके वरदान किस तरह आपने उसे इस्तेमाल किया, How you use your money, किस तरह आपका पैसा आप इस्तेमाल how किया, you use your gifts and talents. आपके गुण और आपके वरदान किस तरह What इस्तेमाल did you किया, do with everything that God gives to you? और जो भी परमेश्वर आपको देता है आपने क्या किया। I'm a Christian for 34 years. और अभी 34 साल से मैं विश्वासी And हूँ, in these 34 years, God gave me a lot of things. और ये 34 साल में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष किया, Lots of ability, lots of money, lots of friends, lots of family, lots of talents, lots of things I never had in my life. मेरे जीवन में जो नहीं था उसके मुझे काबिल बनाया, मुझे काम दिया अच्छा, और अच्छा दोस्त दिया, और सेवकाई दी, ये And सब all चीजें मेरे this जीवन में नहीं is थी। given to me to build the kingdom of God. ये सब चीजें मुझे इसलिए दिया कि परमेश्वर का राज्य बांधूं मैं, Help people. और लोगों को मदद करूं। But the second coming of Jesus, He is coming to judge me, to check how did I use all my power, authority, money, ability and wisdom. जब दूसरा बार वो आता है, हमारे अधिकार, सामर्थ, पैसा, जो भी संपत्ति दिया है उसे किस तरह मैं इस्तेमाल किया हूँ। If I use them well, अगर वो धन मैं उसको I will छोड़ have a दूं, great reward in heaven. और मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। If I misuse them, अगर मैं गलत इस्तेमाल करूं, I will be answerable and guilty before God. मैं परमेश्वर को उत्तर देना चाहिए और दोषित माना जाऊंगा। If I don't use them at all, मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, due to whatever reason it is, और कोई भी कारण क्यों ना हो, I will be still guilty just like the people who misused it. और उन लोगों की तरह मैं दोषी माना जाऊंगा जो लोग ने उसको गलत प्रयोग किया। Just being reluctant to use the gift makes you guilty as much as people who use it in the wrong way. और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने उसको सही तरीके से कुछ ख्याल ही नहीं किया, और उसी तरह का होगा जो लोग गलत इस्तेमाल so we किया। as Christians, और हम विश्वासी होने we के must कारण learn to seize every opportunity. हर मौका जो हमें मिलता है उससे हम ग्रहण कर लेना चाहिए, Don't इस्तेमाल करना allow चाहिए, any opportunity to pass by. और कोई भी मौका अपने हाथ से गुजर के नहीं जाना चाहिए। Always be alert in your Christian life. और हमेशा अपने मसीह और जीवन में सावधान रहना है, And always watchful, हमेशा देखते रहो, because you do not know what God is bringing on your way. आपको पता नहीं आपके मार्ग में परमेश्वर क्या लाने वाला है। So, coming of Jesus is very near. और यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक So, पहुंच I चुका want to है। share a few signs of the second coming of Jesus. और यीशु मसीह दूसरा बार आने के बारे में कुछ And चिन्ह मैं before बताऊंगा, that, I just want to show you an example. और एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। Can you bring that table here? और वो टेबल थोड़े यहाँ पे लेके आइए। Many of our lives are like these glasses. और देखिए इस जो ग्लास है उस तरह है, Some glasses are very small. और थोड़े ग्लास बहुत छोटे हैं, Very little makes them feel so full. और देखो वो पूरी भरी होती है। Have you seen some people, a little blessing, they become so arrogant and they feel so overwhelmed with it and they act like they got it all. और थोड़े लोग को देखिए जब उनका प्याला भर जाता है और वो ऐसा सोचते हैं कि वो तो सब कुछ पा चुके हैं अभी दुनिया Some में। people's lives are like this glass, very small. थोड़े लोग का जीवन ये छोटा ग्लास है, उतना उनका Their जीवन है, soul is very small. और उनका जो आत्मा है वो इतना ही छोटा सा Little है, things make them so puffed up. और छोटे छोटे चीजें उनको हवा भर देती है। One time achievement, they start thinking no end of themselves.
और वो एक बार ऐसे मान लेते हैं कि अभी तो अंत नहीं है They उसका। start going around telling everybody, be like me, look at me, look at me. See, I'm so blessed. वो हमेशा कहेंगे अपने बारे में, मुझे देखो, मेरी तरह रहो, मैं कितना आशीष पाया हूँ। Sometimes a new churidar is more than enough for you to think that you are better than others. और किसी से थोड़ा अच्छा चूड़ीदार आप पहन ले, आप कहते हैं दूसरों को मैं सबसे बेहतर हूँ। Even buying a tukda by second-hand bike is enough for you to think that you are better than many others. और ये पुरानी अगर आपने बाइक मोटरसाइकिल भी खरीद लिया, कहते हैं आप सबसे बड़े हो। See, if you are a very small person, अगर आप इतना छोटे इंसान हैं, God cannot pour too much blessing upon you because you can't contain it. आप अगर इतने छोटे, आपका बर्ताव के कारण परमेश्वर उसमें ज्यादा नहीं भर Now सकता। what if I start pouring blessings into this cup? It's going to be wasted. It's going to go all over the place. अगर देखो इसके अंदर मैं आशीष उंडेलता रहूंगा और अंत में देखो वो जितना उतना लेगा, बाकी का सब बाहर उमड़ेगा। That's why God sent troubles in our life. इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर समस्याओं All को the भेजता है। troubles are teaching us to dig more deeper so that we become bigger. और हमें समस्या इसलिए भेजा जा रहा है, हम गहराई में खुदाई करें और हम बेहतर बने। Some people are like this cups. और थोड़े लोग किस कप It की looks तरह very हैं। attractive. They looks very good. और वो अच्छे दिखते हैं, खास है, But they can take a little more, but not too much. और ज्यादा थोड़ा आशीष पाते हैं, लेकिन भरपूरता का भी नहीं हुआ And their है। level is only this much. और उनका तो ऊपर भरने से थोड़ा There कम are some है। people are like this glass. और थोड़े लोग उस तरीके के गिलास They के can हैं, take much more. और वो ज्यादा लेते No हैं। matter, they can take much more than these two. और ये दोनों से ज्यादा लेता है Then वो। some are much bigger than these three. और थोड़े इनसे भी ज्यादा है, They can take a lot और वो बहुत ले सकते हैं, and they still remain humble. और वो हमेशा नम्र में भी You रहते know, हैं। God cannot bless you unless you grow. जब तक आप बढ़ेंगे नहीं भरपूरता में, तब तक परमेश्वर आपको आशीष करेगा नहीं। You know, whether you are this size or whether you look so good and small like this or whether you are this size, so this size, God is faithful to fill all of us. आप छोटे हो या अच्छे खास दिखते हो या ज्यादा भरे हो या सबसे ज्यादा भरे हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपका हृदय का बर्ताव को देखना So चाहता from है। the day of Pentecost, और वो पंतेकोस्त के दिन से there is a Holy Spirit flowing in the world. और दुनिया में पवित्र आत्मा उमड़ रहा है। The very fact Jesus came और ये घटना है, यीशु आया, to सच्ची save you घटना। from your sin, sickness, poverty and suffering. आपका उद्धार करे, गरीब से, आपको श्रापग्रस्त थे वो बचाकर आपको लेके आए, Is to bless you, prosper you, heal you and make you great. आपको आशीष करने के लिए, चंगाई करने के लिए, उन्नतिमान बनाने के लिए और महान व्यक्ति बनाने के लिए। But you know to learn to start digging on each other. Don't remain as small. और जितना छोटा है उतना मत रहिए, आपको मौका मिला है, आप You खुदाई must- कर कर You बढ़िए। must have a hunger in you. आपके अंदर भूख होना You must चाहिए, have a thirst in you. प्यास होना चाहिए। Every problems and the troubles that God brings into your life आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती is the है, way God digging you. और इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर खुदाई कर You रहा know, है। our troubles and trials makes us better people. आपको पता है हमारी समस्या और हमारे जो तकलीफें आती है हमें बेहतर इंसान बनाता है। David said in Psalm number 119 verse 67 and 72. और भजन संहिता का 119 और 67 में कहता है, He said, it was good that I was afflicted. ये अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं क्लेश में आया Through my affliction, I learned to obey God. और मेरी इस क्लेश के कारण मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। He said, before I went through troubles, और मैं समस्या में जाने के I was पहले almost going the wrong way. और मैं हमेशा गलत मार्ग में चल But रहा my था, trouble brought me back to obedience to God. लेकिन मेरी समस्याएं परमेश्वर का आज्ञा में मुझे वापस So- लेकर आई। Jesus came first time, यीशु पहली बार आए 2000 years back, 2000 साल के पहले to save you and me and whole world from the sin and sickness, poverty and injustice. पूरी दुनिया को, आप और मुझे ये पाप से, श्राप से, अन्याय से बचाया। From that day onwards, उस दिन से आज तक Jesus is saving people all the time. और हमेशा यीशु लोगों का उद्धार करवा रहा है। Even now, Jesus is in the business of winning souls. लेकिन आज भी यीशु उस कारोबार में लगा हुआ है, It is आत्माओं our की जीतने job के is to लिए। go and tell people about Jesus. हमारा काम है जाओ और लोगों को यीशु के बारे में बताओ। Apostle Paul said, अपॉस्टल पौल ने कहा, "Who unto me if I don't preach the gospel?" अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा तो मैं कौन हूँ?
हूँ। He said, if I don't preach the gospel, I am a miserable person. अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मैं बहुत गड़बड़ी इंसान The हूँ। greatest calling in a Christian's life और उस विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा बुलावा जो is है to testify Jesus to other people. यीशु मसीह के बारे में दूसरों के सामने जाकर गवाही You बताना। will overcome all the works of the devil by the word of your testimony and by the blood of the Lamb. ये वो मेमने के लहू से, आपकी गवाही के शब्द से शैतान के हर एक कार्य के Every ऊपर आप हावी हो time सकते you हो। share your testimony to an unbeliever, हमेशा आपकी गवाही अन्य विश्वासियों की जब बताते you are हैं, defeating the devil. आप शैतान को हरा रहे हो। And every time you don't share your testimony, you don't share the gospel, और जब सुसमाचार नहीं सुनाते हो, आपकी गवाही नहीं बताते you हो, are getting yourself defeated. आप अपने आप को नीचे गिरा रहे Some हो। of you are not blessed because you are not witnessing the name of Jesus enough. आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आशीषित इसलिए नहीं पाए, आप चाहकर अपनी गवाही सुसमाचार को लोगों को नहीं बताया Some है। people say, but I don't know how to share the gospel. थोड़े लोग कहते हैं मुझे पता नहीं किस तरह सुसमाचार Good that you सुनाऊं। don't know. ये अच्छा है, आपको पता You नहीं just है। tell what happened in your life. ये सिर्फ बताओ आपके जीवन में क्या But हुआ। if you say, but nothing happened in my life, आप कहते हैं मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, then you join with us to pray. Something will happen in your life very soon. और हमारे साथ में आप जुड़ जाइए, बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत कार्य होगा। You have to receive from God in order to give it to others. दूसरों को देने के लिए परमेश्वर से आपको मिलना बहुत जरूरी The है। God whom I serve जिस परमेश्वर की मैं सेवा is करता a हूँ, generous God. और वो दयालु है, He wants to give you more and more and more. वो आपको ज्यादा और ज्यादा और अधिक ज्यादा देना चाहता है। Bank of heaven will never become empty. और उसकी तरह स्वर्ग कभी खाली नहीं होगा, He always wants to give you more and more and more. और वो आपको ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ही देना And चाहता I है। stand here as a testimony of God's giving. और यहाँ पर मैं गवाह के रूप में खड़ा होता हूँ वो देने के बारे में। You know, anybody who trusts God, और जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, God will never put them into shame. परमेश्वर कभी शर्मिंदगी में नहीं डालेगा। Someone said it doesn't matter where you started. ये किसी ने ऐसा कहा, कहाँ पर से शुरू किया उसके When ऊपर कोई निर्भर Jesus नहीं is on है। your side, जब यीशु आपके पास में है, you can reach anywhere you want. आपको जिधर पहुंचने के जाइए वहां पहुंच सकते हैं आप। Hallelujah. हालेलुया। Can you say hallelujah for that? क्या कोई हालेलुया कह सकते हैं? How many of you believe that God is going to bless you in these days to come? कितने विश्वास करते हैं आने वाले दिन में परमेश्वर आपको आशीष करेगा? How many of you say, God, I will broaden my life? और कितने कहते हैं मेरे जीवन में मैं अभी चौड़ा होकर When चलूंगा? you turn your Bible to book of Isaiah, ऐसे की किताब जब खोलते हैं, book of Isaiah chapter 54, 54 हम verse 1 onwards. और हम एक से पढ़ेंगे। Let your voice be loud in song, O women without children. और आपकी आवाज धुन वो ऊंची बढ़ती रहे ए स्त्री, Make melody and sounds of joy, और तू खुशी से आवाज कर और गुनगुना कर you गाना who गा, did not have birth. और ताकि आपकी जो गर्भपात न हो। Children of you who had no husband will be more than the married wife. और आप जिनके बच्चे नहीं है, आप उस शादीशुदा Verse से 2. ज्यादा तो, Make wide the place of your tent. और आपकी तंबू की सीमा को बढ़ा लेना, Let the curtains of your house be stretched out without limit. और आपके घर की जो कर्टन जो है वो बिना स्थगित किए हुए वो चौड़े कर And लेना, make your cords long और उसकी जो रस्सी है वो बड़ी कर देना, and your tent pin strong. और आपकी जो तंबू के खूंटे हैं I वो will चौड़ाई में गाड़ make देना, wide your limits on the right hand, on the left. और दाहिने और बाइने में चौड़े कर देना, And your seeds will take nations for heritage. और आप राज्य को आपके राजवाड़े की तरह ले लेना। Prophet Isaiah says prophetically, learn to expand your life. और भविष्यवक्ता जो आइज़ाया ऐसा कहता है, आपकी जो Learn भी to सीमा है वो stretch. बढ़ा देना, Learn to stretch your tent. और आपकी तंबू की सीमा है वो उसको बढ़ा लेना। If you have this much, plan for this much. अगर इतना सा है आपके पास, इतनी बड़ी योजना बना लो, And make your pecs strong. और आपकी जो खूंटे हैं वो Even if you दूर feel गाड़ like you're देना। a barren, अगर आप सोचते हैं एक बांझ की तरह है आप, that you have nothing, आपके पास कुछ नहीं है, sing loud, shout loud. गाने गाओ, चिल्लाओ, You know, God will bring more for you. परमेश्वर ज्यादा आपके लिए लाएगा। Your sons and daughters will come. आपके बेटा और बेटी आएंगे, From the right and the left, things will grow. और दाहिने और बाएं और You know, चीजें बढ़ जाएगी, Don't remain small. और छोटे ही बनकर मत रहना। If you feel so full, don't get overwhelmed. अगर आप पूरा भर गए, उसको लेकर आप हवे Learn में to की तरह fight and learn to dig deep in
within yourself. और आपको बढ़ाने के लिए, चौड़ा करने के लिए अपने आप को गहराई में You've खुदाई got करो, to become like a deep well, और आपको गहराई की खुदाई के वाला बनना where you चाहिए। can receive more and more and more from God. परमेश्वर से आप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ग्रहण So करें। these are the last days. ये अंतिम दिन है, And the word of God says, in the last days, I'll pour out my Holy Spirit upon all the nations. और अंतिम दिन में परमेश्वर कहता है, मैं मेरी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उंड लूंगा। Most of the religion are bound by a caste, a creed, or culture. और बहुत सारे जो धर्म जो है अपने जात पात को लेकर बंधे हुए हैं, But Jesus' way, लेकिन यीशु में it's not bound with any caste, or color, or creed, or nations. और देश हो या जात हो, पात्र हो, कोई घर गोत्र क्यों ना हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। Christianity never been and never will be a religion of one particular race. और जो मसीहा धर्म है वो जो लोग मानते हैं वो उस तरह नहीं था और नहीं भी होगा, ये की तरीके का होना is a चाहिए way ऐसा। of life for all those who want to inherit salvation. और उद्धार पाने का राजवाड़ी का ये की मार्ग है, जो उसमें होकर चलते हैं, उन्हीं के लिए सही है। So the greatest hope of a Christian विश्वासियों का सबसे बड़ा आशा ये is है the second coming of Jesus. यीशु मसीह का दूसरा आगमन, And the final destination of us is heaven. और आखिरी में हमारा निशाना जो है स्वर्ग में जाने वाला। Apostle Paul says in Philippians, अपॉस्टल पौलुस फिलिप्पी में कहता है, our citizenship is in heaven, हमारा नागरिकत्व जो यहाँ पर नहीं है वो where स्वर्ग we में are है, seated with Jesus at the right hand of the Father. और हम यीशु के पास वहाँ पर पिता के दाहिने From और the बैठे day you हैं। are born again, जिस दिन आपने नया जन्म पाया, your citizenship is transferred from the earth to heaven. आपका नागरिकत्व जो है ये पृथ्वी से स्वर्ग की ओर बदल गया You है। become the citizen of God. आप परमेश्वर के नागरिकत्व बन गए हैं। That's why someone said we are called kingdomites. इसलिए कहते हैं ये राजवाड़ी के मन के The man जैसे। want to divide us in the name of religion, caste, color, creed, wealth. और इंसान जो है जात पात, धर्म, संपत्ति, गरीबी, अमीरी में बदलना चाहता But है, Christ came to unite all of us as one. और ये सब होने के बावजूद यीशु हमें एकता में लेके आने When के लिए आया God है, want to use somebody, ताकि परमेश्वर किसी को when God इस्तेमाल want to करे, bless someone, और परमेश्वर किसी को आशीष He करता don't है, look at his education, और उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं He देखता, don't look at his caste, और उसकी जात नहीं He don't देखता, look at his looks, और उसकी खासियत नहीं He don't look देखता, at his knowledge, और उसका ज्ञान नहीं He don't देखता, look at his eloquency. और उसकी कहने की भावनाएं He क्या है वो नहीं only देखता, look for willingness. और वो चाहत ही देखता है। Because the willing will always overtake the unwilling. और चाहत अचाहत को हमेशा हावी करके चलाता है। So we are called to be blessed. हमें आशीषित होने के लिए We बुलाया are है, saved from sin, sickness, poverty and injustice. और हमें शराब से, बीमारियों से, अन्याय से, हर तरीके के काम से We बचाया have गया been है, given gifts and talents. और हमें वरदान और अच्छे मन वाले And दिए that's गए what हैं। Jesus came for. इसलिए यीशु आया He है, came to help you to discover yourself. अपने आप कौन है पहचानने के लिए मदद Now, करता है। second time Jesus is coming back again. जब दूसरी बार वो आने वाला है यीशु Now, मसीह, not to save you, not to forgive you, to judge you. आपको माफ करने के लिए नहीं, आपका उद्धार करवाने के लिए नहीं, How आपका did न्याय you- करने के लिए। How did you use your gifts, your talents, your wealth, your abilities? आपकी काबिलियत, आपकी संपत्ति, आपके गुण और आपके वरदान जो दिया है वो किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। Some people rob God और कई ने परमेश्वर को चोरी किया and they say, I got it, I can hide it and I'll be safe. और उन्होंने कहा कि मुझे मिल गया, मैं बच सकता हूँ, उसे छुपा कर रखूंगा। Listen, you got to give it to God what belongs to God. If not, you end up giving 10 times more to the hospital. और देखिए जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो, अगर छिपा के रखेंगे तो उससे ज्यादा 10 गुना आप अस्पताल में भर्ती करना When पड़ेगा। you are unfaithful in your giving, जब आप देने के बारे में विश्वास योग्यता नहीं है, you miss out God's blessing. परमेश्वर के आशीष को खो जाते हैं You are आप। giving room for the devil. आप शैतान को एक कमरा दे रहे हो। Don't rob, don't cheat, don't lie. चोरी मत करो और उसके साथ में छेड़छाड़ मत If करो। you rob someone, किसी को अगर चोरी किया है someone else will rob you 10 times more. और आपको 10 गुना ज्यादा कोई चोरी करेगा। In Malayalam, we have a saying, और मलयालम में ऐसा कहा जाता if है, you know, Chettiar is a kind of like Marwadis in South India. और साउथ इंडिया में मारवाड़ी की तरह रहते हैं, If a Chettiar fools a blind man, और जो चट्टियाड़ कहते हैं वो अगर अंधा को मूर्ख बनाएगा, God will fool the Chettiar. और वो चट्टियाड़ जो होता है उसको If परमेश्वर मूर्ख I fool बनाएगा। Krishna,
अगर मुझे उन्होंने उल्लू बनाया someone else will fool me 10 times bigger. और ये गुना उन्होंने किया, लेकिन उनके साथ में 10 If गुना उनको I ऐसा कहा gather जाएगा। wealth in ungodly means, और परमेश्वर के मतलब के बगैर जो संपत्ति इकट्ठा हमने Bible किया है, says, पवित्र शास्त्र कहता my है, wealth will fly away from me when I need it mostly. और जब मुझे सबसे ज्यादा गरज और जरूरत है वो मेरे से दूर उड़कर चला But जाएगा। if God blesses me with the wealth, अगर धन के साथ में परमेश्वर मुझे आशीष He करता है, add no sorrows to it and nobody can take it away. उसमें कोई दुख नहीं डालता और कोई मुझे छीन भी नहीं See, सकता। I've been serving God in Goa for 27 years. और अभी 27 साल से गोवा में सेवा कर रहा हूँ, I spent crores of rupees in Goa. और गोवा में मैं करोड़ों करोड़ों खर्चा किया, And so many people fool me. और बहुत सारे लोग मुझे मूर्ख बनाया, So many people brought away from me, start church, start charities. और बहुत सारे लोग कलिशा बांधने के लिए, संस्थाएं बांधने के लिए लिए। Now, I would say this without pride, with humility, none of them could survive. और मैं घमंड से नहीं, लेकिन पूरी नम्रता से कहता हूँ, जो भी मुझे फंसाया You know, वो when कोई you- भी नहीं बचा, When you नाश हो walk गए। with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, God become your protector. परमेश्वर आपका सुरक्षा करने वाला God बन will जाता है। not allow the evil one to put his hand upon you. परमेश्वर तो दुष्ट को उसका हाथ आपके ऊपर डालने के लिए बिल्कुल नहीं In the देगा। Bible there is a verse. और पवित्र शास्त्र में वचन है, God will not allow the scepter of the wicked to fall on the land that allotted to the righteous, where the righteous will fall into wickedness. और जो अधर्मी है वो धर्मी को मूर्ख और उल्लू बनाने की उसे अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वो धर्मी है, उसके लिए परमेश्वर उसके साथ में न्याय करेगा। When you lead a righteous life, और जब धर्मिता का जीवन आप बिताते when you're हैं faithful in giving, और देने में विश्वास योग्य when जताते you हैं, use all your gifts and talents to God, और आपके गुण और आपके वरदानों को इस्तेमाल Bible उसके राज says के लिए God करते will हैं। command his angels concerning पवित्र you. शास्त्र कहता है परमेश्वर अपने देवदूत को आपको ख्याल करने के लिए No भेजेगा। danger or misfall will come upon you. कोई खतरा, कोई भी अनादर खाम आपके ऊपर नहीं आएंगे। So these are the last days. ये अंतिम दिन है, We believe and we know that Jesus coming is very soon, very और quick. हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु जल्द ही आने वाला You है। know, I just want to read some of the signs of the second coming of Jesus. और उसका दूसरा आगमन के बारे में कुछ चिन्ह है, You उनको know, पढ़ेंगे। towards the end of Jesus' ministry, और यीशु की अंतिम दिन की सेवकाइयों में he rebuked bad people in chapter 23 of book of Matthew. He said, woe to you, seven people, seven kind of people. He said, you guys, you're bad, you're rotten. और मत्ती का 23 अध्याय में लोगों को विरोध किया, तुम तो बहुत बुरे हो यार, ऐसा कहा था उन्होंने। Then Jesus came and sat with the disciples and they showed Jesus the temple. और जब यीशु के चेले साथ में आकर सब बैठे थे और यीशु को उनके चेलों ने ये मंदिर दिखाई And he said, how beautiful it is. और कहा कि देखो कितना सुंदर मंदिर है। Then Jesus said, this temple is nothing. It's going to be destroyed very soon. और यीशु ने सुनने के बाद में मुड़कर कहा, ये मंदिर, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो अभी झट से नष्ट होने वाला है थोड़े This समय will में, not last. No stone will remain on the other stone. और ये लंबी देर नहीं टिकेगा, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। And Jesus' words become true and the temple was destroyed in AD 70. और यीशु के शब्द थे वो सच हो गए और AD 70 में उस मंदिर को नष्ट किया And गया। then disciples asked Jesus, when are you coming back? What are the signs of your coming? और चेले मुड़कर यीशु को पूछे, आप कब आने वाले, क्या क्या चिन्ह है वो आप आने के समय में देंगे। Then Jesus spoke to them. और यीशु ने उनसे बातें किया 6 things Jesus told them that the sign of the last days. और 6 बातें यीशु ने उनको कहा अंतिम दिन में The क्या number होने one, he वाला said है। that one of the sign of the last day, there will be all kinds of disasters. और एक चिन्ह उन्होंने बताया कि दुनिया में नाशवादी का भ्रष्ट समय चलेगा। Matthew chapter 24 verse 26 to 8. मत्ती का 24वां अध्याय और 26 He वचन। said, you shall hear the wars and rumors of wars. और आप इन कही हुई बातों को सुनेंगे और See देखेंगे। that you are not troubled. आप ये ध्यान में रखो कि आप गड़बड़ में ना All these जाए। things must come to pass, और ये सब चीजें तो अभी पूरी होगी, but the end is not yet. लेकिन अंत अभी तक नहीं है। Nation will rise against the nations, एक देश दूसरा देश के विरोध में लड़ेगा, kingdoms against the kingdom. राज दूसरा राज में There लड़ेगा। shall be famines, pestilence, and earthquake. अकाल, समस्याएं, भूकंप आएगी। All these are the beginning of sorrow. और ये दुख के शुरुआत के चिन्ह In हैं। the recent years, there were more number of disasters than ever before. और पहले से भी ज्यादा संख्या में जो नाशवादी भ्रष्ट समय आ We रहा had a है। tsunami, killed millions of thousands of people. और सुनामी थी, लाखों करोड़ों में लोग मर गए। Then we had wildfires, earthquakes, famines, plagues.
और वहां पर देखिए जंगल में आग लग गई, अकाल आया और भूकंप आई, अलग अलग तरह के आंधी तूफान आया। Latest one is coronavirus. और अभी तो फिलहाल में अभी नया In कोरोना वायरस 2019, it's begin in China. और 2019 में शुरुआत चाइना में हुआ। Some say Chinese made it. Some say it's just a mistake from the laboratory spill out. Some says it came from the animals. We don't know, but it started in a place called Wuhan in China. और कोई कहता है चाइना ने वो बनाया है, कोई कहता है लेबोरेटरी से वो लीक होकर बाहर आ गया, कोई कहता है भेड़ बकरियों से आया है, लेकिन वुहान सिटी में हुआ तो है। We read in the news, none of us took serious. We thought that's China's problem. We will never get it. और हमने सुना कोई गंभीर नहीं लिया, वो चाइना वालों का समस्या है, उनको अपना निपटने दो आपस But में। it's spread all around the world today. लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है 250 lakhs people got coronavirus. So- और 250 लाख जो है कोरोना वायरस के संक्रमण में आ चुके हैं। and scientists say it's going to continue more. और वैज्ञानिक कहते हैं ये तो रुकेगा नहीं, लगातार बढ़ता ही जाएगा। You know, India, almost 1 lakh people are getting every day. और ये भारत देश में 1 लाख लोग हर दिन उसके संक्रमण में आ रहे 76, हैं। 77 known, and we don't know how many unknown. और अभी तो पता नहीं है अभी कितने उसमें से नहीं है। Already 8,50,000 people died. अभी 8.5 लाख लोग जो है वो मर चुके हैं। There was a bushfire in Australia. ऑस्ट्रेलिया में वो झाड़ियों में आग लग गई It killed millions of animals. और वो लाखों करोड़ों में लोग जो वो कि पक्षियों को मार डाला। Thousands of kilometers of forest was burned down. हजारों किलोमीटर की दूर जो है वो जंगल जल गए। In East Africa, there was a desert. Locusts came on. और ईस्ट अफ्रीका में देखते हैं वहां पर टीटियां आ It गई came up to Delhi, और दिल्ली तक पहुंच गई। and people lost all their crop, और vegetables. लोग जो भी अपने सब्जियां उगाए थे खेत में सब खो And गए। it seems there is a big shortage of food because of that coming in. और वो आने के कारण हमारे भारत देश में खाने पीने चीज की कमी हो गई। What do you say, locusts in Hindi? Titi, small ones, but they came in millions. और देखिए छोटे छोटे टीटियां होती है वो तो लाखों करोड़ में बड़ी संख्या में आ गई। The COVID virus alone pushed 100 million, that is 1,000 lakh people into poverty. 1,000 लाख लोगों को ये जो छोटा सा बीमारी है गरीब में मिला के छोड़ And दिया। this locusts put another millions of people, lakhs of people into poverty. और ये जो टीटियां है Poverty. और लाखों लोगों में नष्ट कर दिया। There was a big blizzard. I mean, blizzard means a fire and storm and all in Canada. और कनाडा में आग और तूफान दोनों साथ में आ There's गए। torrential rain in China and Indonesia. The city's been washed out. और बहुत बड़ी आंधी तूफान के बारिश आए चाइना में, अलग अलग भाग देश If में, you और सब धुले हो If गए। you look around, अगर हमारे आसपास को देखते हैं we see a lot of disasters all around us. और बहुत सारे नाशवादी का भ्रष्ट के कार्य हो रहे हैं। You know, kind of sickness we never heard in the past. और पिछले दिनों में इस तरीके की बीमारी का नाम कभी हमने सुना भी नहीं, सोचा भी Where नहीं। in the world in our lifetime, we had a situation where all the planes, trains, bus, cars, and everything is shut down. Everybody went inside the house and locked. When did it happen? और ये भारत देश में इतिहास में अभी कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। अभी देखिए आप दफ्तर बंद हो गए, बस, गाड़ी और बड़े बड़े बंगले, ईमान जो है वो सब बंद हो गए, दुकानें, और घर में बैठे दरवाजा बंद कर In my कर। कभी 50s हुआ नहीं ऐसा। In my 56 years of life, I never seen. और ये 56 ईयर्स में मैंने कभी देखा भी When नहीं I ऐसे। read the history, इतिहास जब पढ़ता हूँ they never had something like that what we see today. आज देखते हैं वो कभी था ही नहीं पहले। There was a tremendous increase of wars and rumors of wars, plagues and pestilence and all kind of disease. और इन दिनों में आप देखते हैं युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, अलग अलग बीमारी शुरू हो गई और गरीबी में जाने लगे। ये सब हमें आज देखने के लिए मिल रहा The है। number 2 sign of the second coming of Jesus और दूसरा चिन्ह यीशु मसीह का आने के बारे is the में, love of many believers shall grow cold. और बहुत सारे विश्वासियों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ेगा। Because the iniquity shall increase, Matthew chapter 24 verse 12. और मत्ती का 24वां अध्याय 12 वचन, Because there is so much sin, क्योंकि बहुत सारा पाप है इसीलिए people's love grow cold. लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। Do you know that our immorality is on the rise all around the world? आपको पता है ये जो गैर नाजायज संबंध है पूरी दुनिया There में भी is फैल so चुका है, much immorality even in the church. और कलीसियाओं में नाजायज संबंध होते हैं। People are committing adultery like anything.
और जो नाजायज संबंध लोग आसान से बना लेते हैं। Adultery is one of the sin that God hates. It brings God's wrath upon your life. और ये जो नाजायज नाता संबंध बनाकर रखते हैं, परमेश्वर का क्रोध अपने आप के ऊपर लाते हैं। And you take up any magazine, look at any movies or the Bollywood or Hollywood. It's all about adultery and nakedness. और आप कोई भी न्यूज चैनल देख लो या अखबार उठाओ और जाकर देखिए, वो हॉलीवुड या बॉलीवुड में हो, सिर्फ ये नाजायज संबंध कैसे बनाना चाहिए उसको सिखा रहा There is है। a porn industry. और पोर्न इंडस्ट्री, Porn मतलब, what do you say in Hindi में porn? The man and women removing the clothes and having sex openly. और पुरुष और स्त्री नंगे होके शारीरिक संभोग करते हैं। And it is bigger than Hollywood and the Bollywood together. और बॉलीवुड और हॉलीवुड में अभिनेताएं करते हैं, वो उनसे ज्यादा बड़े पैमाने पर है। There are more people watching porn than anything else. और दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोर्न कहा जाता है उसे वो गैर संबंध बनाते हैं, उसको देखते हैं आज All लोग। kinds of sex with animals and human beings and same man to man and woman to woman and all kinds of evil practice. People are chained and raped, and some people want them to be beaten up then raped. और ऐसा होता है कि अभी लैंगिक संबंध बोलते हैं उसे, मतलब इन आदमी आदमी, औरत औरत और प्राणी पक्षियों के साथ में, और थोड़े लोग अपने आप को घायल करने के लिए बांधो मारो और मुझे ठेस पहुंचाओ। इतना बुरा जीवन जी रहे हैं लोग। People become so greedy for money. पैसे के लिए लालची बन गए हैं लोग। Lot of people are obsessed with themselves. अपने आप को लेकर दबा के रखते हैं लोग, People become so greedy for things. और चीजों के लिए वो लालची बन चुके हैं। Nobody is willing to share. कोई भी कहना नहीं चाहता दूसरों को, Everyone want to hold on to things. और जो भी चीजें उनके पास में आती है उसको पकड़ कर There रखना is a चाहते हैं। rampant increase of iniquity around us. और इस तरीके के दुष्ट कार्य की जो है वो बढ़ोतरी हो रही है As हमारे a नीचे, result of the increase of iniquity, और इसका परिणाम जो होगा अभी बढ़ोतरी में आने वाला, many people's love is growing cold. और बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। I'm a pastor. एक पासवान हूँ, You know there are a lot of pastors run the church only for money. और बहुत सारे पासवान सिर्फ पैसा बनाने के लिए कलीसियाएं चलाते हैं, They want the best cars, best house, even the mic in gold. और उनको अच्छा घर चाहिए, अच्छे कारें चाहिए, उनके माइक सोने का होना चाहिए, But they never do anything for the poor. लेकिन गरीब के लिए कुछ करते ही नहीं है। They were been poor in the past. और वो गरीब दिखाने से तो वो आए हैं, Many of these greedy, money greedy pastors, they were poor before. और वो जो पैसे के लालची पासवान आज है वो तो पहले गरीब Because थे, they came from a poor background, और वो गरीब दिखाने से आए they हैं, become so greedy for money. पैसे की इतने लालची बन गए You know, हैं। I'm from Kerala. मैं केरला से हूँ, And when I became a Christian, जब मैं विश्वासी बना, I used to get fed up with these pastors who always ask for money. Give it to man of God, give it to man of God, give it to man of God. But man of God never give it to anybody else. और मैं ये शब्द हमेशा सुनता था, जो सेवक है परमेश्वर का दास को दे दो दे दो दे दो, लेकिन परमेश्वर का दास लेता तो है, लेकिन कुछ उठाकर किसी को चवन्नी भी How नहीं many of देता। you know the Bible says it's blessed to give than to receive? कितने लोग बाइबल जानते हैं कि आशीषित करो और दूसरों को देने के लिए। Amen. आमीन। We have to be proud in giving more than getting. हम लेने से ज्यादा देने में माहिर होना चाहिए। It's not about the size of your giving. आपका देने का कितना देते उसके ऊपर It निर्भर नहीं is your है, heart of giving that matters. आप जिस हृदय से देते हैं वो निर्भर When लाता you है। read Luke chapter 21, लुका का 21 में पढ़ते हैं, Jesus sat in the temple और यीशु उस मंदिर में बैठ गया, watching people coming and putting their offerings. और जब लोग आकर अपना दशमांश डाल रहे थे, There was a poor widow came and put 2 mites. और वहां पर एक दो गरीब पैसा। स्त्री आई और 2 सिक्के थे उसके Like पास, 2 उन्होंने डाल rupees of दिए, today. और आज का 2 रुपया का उसके And कीमत, some rich people coming big money. और वो अमीर लोग आए और बड़े बड़े दान डाल दिए। Jesus called his disciples and said, listen, और look at that. यीशु ने चेलों को थपथप कर कहा, देखो That देखो, सुनो सुनो lady सुनो, gave much more than all of them. और ये जो गरीब स्त्री है वो धनी लोगों से भी ज्यादा दशमांश They दिया all है। gave out of abundance, but she gave all that she had. उनके पास भरपूरता हुआ लेकिन थोड़ा निकाल कर दिया, लेकिन इसने जो भी था सब It कुछ is- दे दिया। It is not the size of your giving. आपका जो दशमांश देते हैं It's वो your कितना heart बड़ा है of उसका ऊपर giving निर्भर that नहीं है, matters. आपका हृदय कैसा देता है So वो in the दशमांश last उसके ऊपर days, निर्भर होता love है। of many grew
cold. और अंतिम दिनों में बहुत सारा लोगों का प्रेम Because परमेश्वर there के is प्रति so much ठंडा पड़ जाएगा। iniquities or so much sin all around us. और आपके इर्द गिर्द इतना पाप है, इसके लिए Some people made sin as their lifestyle. और थोड़े लोग ने पाप को तो अपना जीवन का शैली बना When लिया है। Jesus told us to pray and ask God not to lead us into और temptation, जब यीशु प्रार्थना किया कि हमें आकर्षित में मत लेके जाए, ऐसा प्रार्थना some किया, people made temptation as their lifestyle. और कईयों को तो आकर्षित चीजें उनका जीवन के संगीदार बना They लिया, don't need to be led to temptation. और उन्हें उस आकर्षित की ओर जाने नहीं They दिया। are living in temptation. वो तो उसमें आकर्षित नहीं जी रहे You हैं। know, some people are busy in making business, running factories, making things only to earn money, not even reading the Bible or don't have time to go to church. और थोड़े लोग तो अभी वो धनवान बनना चाहते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दफ्तर चलाते हैं, अलग अलग व्यापार चलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, उसका पालन करने के लिए उनके पास समय नहीं You know, है। when we see lukewarmness in other Christians, especially in pastors, we feel discouraged. और जब विश्वासियों में खास कर पासवानों में वो एक जो ठंडापन आ जाता है, ये बहुत कठिन वाला समय होता है, मुश्किल का घड़ी होती है। Remember, these are the sign of the last days. Many love will grow cold. और अंतिम दिन के ये जो चिन्ह में दिखाए जा रहे हैं, दूसरा बहुत सारे लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। Number 3, तीसरा विषय, this gospel will be preached to the end of the earth. और सुसमाचार इस पृथ्वी के अंत तक सुनाई Today, जाएगी। gospel is preached all over the world more than any other time in the past. और आज इस देश में सुसमाचार इतना भयंकर सुना जा रहा है, इसके पहले दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। You know, now the lockdown time, और अभी भी जैसा कि सब कुछ बंद होने के you बावजूद know, internet is flooded with the preaching of thousands and thousands of churches. और जो इंटरनेट के ऊपर हजारों में हजारों संख्या में कलीसियाएं सुसमाचार सुना रही You है। know, gospel is abundant today. आज प्रभु का वचन जो है बहुतायत से बढ़ रहा There were है। controls of preaching the gospel in the past. गए हुए दिन में वो प्रचारक को वो लोग नियंत्रण में लेना चाहते थे। Today, nobody can control the gospel. आज सुसमाचार को कोई नियंत्रण नहीं कर Now, सकता। that's a sign Jesus said. और ये एक चिन्ह यीशु ने कहा, This gospel of the kingdom shall be preached all the world as a witness for all the nation, then the end shall come. और ये सुसमाचार जो है पूरे पृथ्वी में अंत तक सुनाने के बाद में ही वो आएगा। There is so much of preaching of the gospel today. आज बहुत सारा प्रचार हो रहे हैं The पवित्र शास्त्र के Bible बारे में, word preaching and the worship is in the tip of your finger. और आज प्रचार, आराधना और वचन सुनना आपके एक उंगली के इशारे के ऊपर करता You है। can stay or sit wherever you want and you can worship God. You can hear the word of God. आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। Some of you say, I don't know how to preach. कोई कहते हैं आप में से कोई मैं प्रचार करना नहीं जानता। Don't worry, if you don't know to preach, tell them about the church, about Jesus, and send somebody's sermon to them. और उनको परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, कलीसिया के बारे में कहो और किसी से उनकी पहचान करवा दो। And the last sign of the last days, और अंतिम चिन्ह है there इन will दिनों be many में, false Christ. और यहाँ पर झूठे मसीहा Matthew कहने वाले chapter आएंगे। 24 verse 23 to 26. और मत्ती का 24 और 23 से हम पढ़ेंगे। Many will come in my name saying, I am Christ. और बहुत सारे मेरे नाम में आएंगे, कहेंगे मैं मसीहा हूँ। There will be many false prophets. और बहुत सारे झूठे They भविष्यवक्ता will होंगे, show great signs and wonders. और वो महान चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। They will even cheat the elected ones. और जो चुने हुए उनको वो तो फंसाएंगे, They can even fool the strong believers. और जो मजबूत होते विश्वासियों को मूर्ख बनाएंगे। But remember what I told you कहता है याद रखो जो मैं कहता and हूँ, hold fast on what you receive. जो आप ग्रहण करते हैं उसको ही You know, पकड़ कर रखना। one of the signs of the last days, there are a lot of people claiming they are Christ. और अंतिम दिन में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे देखो मैं ये मसीहा हूँ। There are a lot of false prophets among us. हमारे बीच में बहुत सारे झूठे प्रवादी हैं, There are false teachers around us. हमारे बीच में झूठे Do you know, गुरु है। false prophets and false teachers attract more people because their ministry is not to the spirit, their ministry is to the flesh. झूठे प्रवादी, झूठे शिक्षण सिखाने वाले, और वो तो कुछ काम के नहीं आएंगे। They don't preach what God wants them to preach.
They preach what people like to hear. जो लोग को पसंद है वही प्रचार करेंगे, परमेश्वर के तो उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। They want to tell people about what they can get. और वो लोगों को वही कहते हैं कि वो उनको क्या फायदा होने Some वाला of the है। preachers are like a Ponzi scheme. You know, Ponzi scheme is you give this much, you'll get 10 times more. और थोड़े लोग ऐसा है कि स्कीम की तरह कहते हैं आप इतना दोगे तो आपको इतना मिलेगा, उनको लालची बना देते हैं लोगों को। You know, some people don't preach about sin, repentance, and eternal judgment or heaven. They preach only about prosperity, healing, miracles, and they do all kind of silly things to bluff people. और कोई तो ऐसे होते हैं कि उनको पाप के बारे में, पश्चाताप के बारे में, सही करो गलत मत करो ऐसा नहीं सिखाएंगे, उनको उन्नतिमान कैसे बनना है, प्रसिद्ध कैसे बनना There are है, people who अपने जीवन को claim- बढ़ावा कैसे लाना है उसके बारे में सिखाते There are हैं। people who claim that they got gold dust in their Bible. और थोड़े लोग ऐसा तो मानते हैं कि उनकी बाइबल में सोने की धूल आ गई There है। are people who claim they got golden tooth in their mouth. और कोई कहते हैं खुद के मुंह में सोने का दांत भी आ गया है। There are people who do magic and say that there will be money in your purse. You और- just open, there will be money. और थोड़े लोग ऐसे जादू टोना करते हैं, देखिए आपके बटुए हुए पैसा ही निकाल कर They दिखाते claim हैं। that jewels fall in their house. और ऐसा भी कहते हैं कि उनके घर में देखिए सोने की चीजें They गिर say रही that they है। got angels' feathers. और कोई कहते हैं कि देवदूत के पंख भी गिर रहे हैं। You know, they are men of greed, always want you to give all your money to them. और वो लोग इतने लालची, हमेशा आपका पैसा का पीछे हाथ धोकर बैठे ताकि आप दे दें। And they want to promote themselves, not Jesus. यीशु को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, उसको निकाल कर अपने आप को प्रसिद्ध करना If you चाहते go हैं। to such people's church, अगर इस तरीके की लोगों की कलीसिया में they आप जाएंगे will print their own pictures and publish everywhere. और वो अपना ही प्रचार करने की, अपना ही पोस्ट को हर जगह निकाल कर डाल Their देंगे। preaching will be all about how great they are, not Jesus is. और उनकी प्रचार भी ऐसी होगी, यीशु मसीह कितना प्रसिद्ध है उसकी नहीं, वो अपने आप में कितना मगन They प्रसिद्ध are है उसके बारे में। ashamedly bold. Say, come to me, I will solve your problem. और वो तो बेशर्म होकर लोगों को बुलाते, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें आशीष They करूंगा। are the men and women loves to lord over your life. और ऐसे बहुत सारे पुरुष और स्त्री है आपके जीवन के ऊपर बोझ बनना चाहते They will हैं। send people to get your family story or personal problem and put it as a prophecy and put it speak to you. और लोगों को आप भेजेंगे आपको और पूछेंगे आपके जीवन के बारे, परिवार के बारे में, और एक दिन उसी को मिलाकर भविष्यवाणी आपके ऊपर इतना जबरदस्त करेंगे। There are a lot of false prophets around us. हमारे पास बहुत सारे झूठे प्रवादी Some भी don't हैं। hear from God and speak. They look at your face and they read your face and speak. और थोड़े तो परमेश्वर से कुछ सुनते नहीं है, आपका हाव भाव चाल चलन कैसा उसको देखकर You know, आपको प्रचार कर कर You know, कहेंगे। you can learn face reading. There are books available in the market. You can learn how to read a person's face and tell what happens. और बहुत सारे ऐसे तो अभी मार्केट में किताबें हैं कि आप पढ़ सकते हैं और व्यक्ति को चेहरा देखकर चेहरा पढ़कर बता सकते हैं कि लगभग क्या हो रहा है उसके जीवन Some of them में। are more dangerous. और अब वो थोड़े तो बहुत खतरे They हैं। will send people to get the background of you. और थोड़े लोगों को भेजते हैं आपके पीठ के पीछे और आपका परिवार They का will क्या get है your खबर name निकालने के लिए। and they will get your name and they will make it as a prophecy in the और service. एक दिन आपका नाम को लेंगे और अपने सुसमाचार में एक प्रचार करेंगे एक भविष्यवाणी के रूप में। And say a congregation like this, if I say name Lakshmi, 99% there will be a Lakshmi. जिस तरह देखिए अभी बड़े बड़े भीड़ में और लोग मिलते हैं और मैं अचानक से लक्ष्मी कह दूंगा, 99% तो एक लक्ष्मी तो होना ही है वहां पे। It's a Catholic congregation. If I say Savio or Lobo or D'Souza, 99% there will be someone with that name. और कैथोलिक में जाते हैं हम सावियो लोबो या डिसूजा कहूँ, 99% तो कोई ना कोई होगा ही वो They will नाम वाला। call out common names. और वो जाना माना नाम को बुलाते Then you हैं lift your hand, they look at your face, and they start telling God is speaking. और आप धीरे से हाथ उठाए, आपको झट से देखकर आपका चेहरा पड़ेंगे, कहेंगे परमेश्वर आपसे बात करते हैं भाई। Sometimes they call the name, the person with that name is not in the congregation. और वो झुंड में नाम नहीं है, उस नाम को भी बुलाते हैं Then कभी they will कभी। make up some bluff stories to bluff your guy. और आपको एक झूठी कहानी सुनाकर आपको मूर्ख In बनाएंगे। the last days, अंतिम दिनों there will में be many false teachers and false prophets. और बहुत सारे झूठे प्रवादी आए और बहुत सारे झूठे They शिक्षक भी will say आएंगे they have divine revelation. और वो कहते हैं कि दिव्यता का प्रकाश मिला है But look मुझे। at their life. उनका जीवन को देखेंगे, They are filled with the greed for money and themselves. पैसे के लालची अपने आप के बड़े पैमाने पर रखना चाहते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा every tree shall be known by its fruits. हर पेड़ को उसके फल देकर पता चलवाया जाएगा। All this glamour, money making, name making preachers, you must ask them, whom do you follow?
और ये जो पैसे धन संपत्ति बनाकर चलने वाले लोग, अगर आप उनको जाकर पूछेंगे They भाई आप say- किसके पीछा करते हो, If they say I follow Jesus, अगर वो कहते हैं मैं यीशु का पीछा करता हूँ, then you should ask them, then how come you become like this? But the Jesus I read in the Bible was poor. He had no house to stay. He has no money in his hand. ये कैसा संभव है? आप कहते हैं इतना धनवान होने के बाद में आप यीशु के पीछा करते हैं। पवित्र शास्त्र में पढ़ता हूँ यीशु इतना गरीब था, उसके पास गाड़ी बंगला मकान या धन संपत्ति कुछ भी तो नहीं थे, He गरीब था didn't वो। wear any kind of special costume. और आपकी तरह ये एकदम प्रसिद्ध कपड़े भी नहीं He पहनता didn't था, seek for the prominent place in the public places. और वो लोगों के बीच में एक अपना स्थान नहीं ढूंढा, He was a servant of all. और वो हर एक का सेवक था, And he owned nothing. और उसका तो खुद का कुछ भी नहीं So था। how come you say you follow Jesus and you have a ways of the devil? और आप कैसे कह सकते हैं यीशु का हूँ, आपके मार्ग सब तो शैतान के हैं। Bible says पवित्र शास्त्र कहता है, greed for money is the root of all the evil. और जो पैसा का लालची का जड़ ये शैतान की ओर We से should है, not be driven with the greed for money. और पैसे के बारे में लालची होकर हम नहीं We बढ़ना should be चाहिए, driven with the faith in God. परमेश्वर में विश्वास के जरिए बढ़ना Remember, चाहिए। our God is faithful. याद रखो हमारा He has परमेश्वर saved विश्वास us योग्य to है, bless us. हमें उद्धार He किया है has आशीष saved us करने to के लिए, prosper us, heal us, and provide all our need. हमें चंगाई करने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, हमारी हर जरूरत But he पूरा करने के लिए, doesn't do हमें that उन्नतिमान through बनाने के लिए। But he doesn't do that through any Superman pastor. और कोई भी सुपरमान अपने आप को बढ़ावा देता है उसी को नहीं He करता है, does वो that through to you direct. आपके साथ में वो सीधा कार्य करता How many है। of you know that God has no middleman? कितने जानते हैं परमेश्वर और हमारे बीच में I'm कोई not मध्य God's व्यक्ति नहीं है, middleman. I'm not God's middleman. मैं परमेश्वर का मध्य व्यक्ति नहीं हूँ, And God has no middleman. और परमेश्वर के पास में कोई मध्यस्थम का व्यक्ति है ही God नहीं। has only sons and daughters. परमेश्वर के पास उसके खुद के बेटा और बेटियां So, हैं। the signs of the last day, there will be disaster, there will be wars and rumors of wars and pestilence and all kind of diseases. और अंतिम दिनों में ये चिन्ह चमत्कार होंगे, नाशवादी का भ्रष्टाचार होगा, और ये हर अकाल जो है देखने को वो सब In the मिलेगा। sign of the last days, people become the lovers of money than lovers of God. और अंतिम दिनों में के चिन्ह है परमेश्वर को प्रेम करने के छोड़कर पैसे के Third लालची sign होकर of the पैसा को last प्रेम days, the करेंगे। gospel will be preached everywhere. अंतिम दिनों में इस सुसमाचार को हर जगह फैलाकर प्रचार The किया fourth जाएगा। sign of the last day, there will be false Christ and false prophets. और चौथा चिन्ह ये जो है झूठे भविष्यवाणी कहने वाले होंगे और झूठे शिक्षक भी होंगे। Anybody comes and say anything or any teaching to you, you always check in your Bible. If it doesn't agree with your Bible, don't accept that person in your house. अगर कोई व्यक्ति आकर चिन्ह चमत्कार के बारे में अपने बारे बढ़ावा करता है या परमेश्वर के बारे में कहता है और वचन को पढ़ो, अगर उसके साथ में नहीं जुड़ा है, उस व्यक्ति को आपके घर में आने की बिल्कुल अनुमति मत देना। If anybody teaches you anything, always check in the Bible. If it doesn't agree with the biblical teaching, it is not from God. Don't listen. कोई भी व्यक्ति आपको सिखाने की कोशिश करता है और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जुड़ा नहीं है, ग्रहण बिल्कुल मत कीजिएगा। In the Luke chapter 21, Jesus said, do not, take note, don't be cheated. और लुका 21 में कहता है इसे ध्यान में रखना, आपको मूर्ख बनाने मत देना। It is true that you will be betrayed by your own parents. even. ये सच में है, अपने आप के लोग के जरिए आपको धोखा दिया जाएगा। People will hate you for my name's sake. मेरे नाम के कारण लोग आपसे नफरत करेंगे, But don't worry. चिंता मत करना। Not even a hair of your head shall be lost. और आपके सर के बाल भी नहीं घूमेगा। And Jesus said, by your patience, you possess your life. और यीशु ने कहा आपकी धीरज के कारण आपका जीवन को आप सफल कर पाए। When you hear all these things, all these disasters and lukewarmness and all these bad things, lift your head, look up, your redemption is near. और देखिए इस समय में जो प्रेम ठंडा हो रहा है और बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है, आप अभी तो देखो इस समय महामारी के समय में है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर को And देखो, Jesus said, अपना सर उठाकर Heaven कहो। and earth will pass away, but my words will never change. और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन मेरा वचन एक दिन का भर भी नहीं मिटेगा। Be careful in the last days. अंतिम दिन में सावधान A रहना। lot of people become so greedy for food and money and drinking and cares of this life. और उनके जीवन के बारे में खाना पीना पैसा अलग अलग चीजों के लालची बन जाएंगे। Beware. सावधान रहना। When you see all these bad things happening,
remember the coming of Jesus is very real. जब ये सब बुरी चीज हो रही है, ये एक बात ध्यान रखो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन दुनिया में नजदीक आ गया है। Greatest hope of a Christian is the second coming of Jesus. विश्वासियों का सबसे बड़ी आशा ये है यीशु मसीह का दूसरा The आगमन होना, final destination of each of us is heaven. और हमारा आखिरी का निशाना है वो सिर्फ स्वर्ग और कुछ Not नहीं, anything in this world. दुनिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं। It is God's faithfulness that He will give you far more than you ask or imagine when you walk with Him. ये परमेश्वर की विश्वासी योग्यता है, उसमें हम चले या अपना कर उसमें रहे। But don't shift your focus from the giver to the given. और जो चीज आपको मिला है उसके ऊपर देने वाले से भी ज्यादा ध्यान मत लगाइए। Always fix your eyes on Jesus. हमेशा अपनी नजर यीशु पे लगा के रखिए। Always look to Jesus, who is the author and the finisher of your faith. हमेशा अपनी नजर यीशु के ऊपर लगा के रखिए। हमारा विश्वास का रचनाकार और लेखक वो है। We are going through a crisis called COVID. और इस महामारी के समय से हम गुजर रहे हैं। How many of you are ready to believe with me that God will protect you from every disease? कितने विश्वास करते हैं हर महामारी से यीशु हमें संभाल कर चलाएगा। I want to encourage each of you every morning, speak the blood of Jesus on you and your family every day, that no virus will dare not to come in your body. और हर दिन यीशु का लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर छिड़किए और कहिए कोई महामारी, कोई कोरोना वायरस, कोई बीमारी आपके ऊपर, आपके घराने के, आपके बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी। You won't die in sickness and disease. You will die in serving God. And आप proclaiming. बीमारी में झकड़ते हुए मुश्किल में नहीं मरेंगे और यीशु में आप जीवित रहेंगे। How many of you know that your life is in God's hand? कितने जानते हैं आपका जीवन यीशु के हाथ में है? God has a set date for us to go to heaven. और परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में लेने वाला है। We don't go to hell. हम नरक में नहीं जाएंगे, We go to heaven. हम स्वर्ग में जाएंगे। We have a permanent home. और हमारा उधर And where we meet घर Jesus है face to face. और हम यीशु को समय के सामने देखेंगे। He will reward you for every pain, every suffering, every injustice you face for His name's sake. और वो हमें इनाम देगा जो मुश्किल, जो तकलीफ और हर दुख का सामना किया उसको लेकर हमें इनाम देगा। He will bless you in this earth when you are faithful to Him. और जब उसकी ओर आप अच्छे बर्ताव करते हैं इस दुनिया में आपको David आशीष said, करेगा। "The Lord is my shepherd; I shall not be in want." और आप बाद में कह सकते हैं ये परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी घटी ना Apostle होगी। Paul said, "What can I say about these things? और अपोस्तल पौलुस कहता है इन चीजों के बारे में If मैं क्या God कहूँ? is for me, who can be against? परमेश्वर मेरे लिए तो मेरे विरोध में कौन खड़ा होगा? There may be perils, trials, poverty, betrayal, pestilence, darkness, evil, disasters, but in all these things, I am more than a conqueror through Jesus. मेरे जीवन में तकलीफ मुश्किल आएगी और उसका सामना करना पड़ेगा और अकाल आएगा, श्रापित जो चीज आएगी, लेकिन जब मैं यीशु में हूँ ये मुश्किलें मुझे कुछ भी नहीं हरा Let's पाएगी। stand before God. आइए हम सब खड़े हो Close जाएंगे, your eyes. अपने आंखें बंद करें, Offer yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को सौंप Like दें। I showed these cups on the table. जिस तरह मैं टेबल के ऊपर उस ग्लास के बारे में Some कह रहा of you था, may be puffed up with a little. Some of you feel you are very small. और थोड़े से भरने के बाद में आप ऐसा हवा Some of की you तरह look ऊपर के fancy, कहेंगे, but you cannot contain too much. लेकिन आप कह सकते हैं मैं अच्छा दिखता हूँ, भरता नहीं Some हूँ, of you are great, और आप थोड़े महान but हैं, God loves all of you. लेकिन सबको परमेश्वर प्रेम If करता any है। of you feel you are least among us, you give yourself to God's hand. God will make you the best among all. अगर कोई ऐसा महसूस करता है मैं तो इन सब में से आखिरी का हूँ, तो चिंता मत करो, अपने आप को परमेश्वर को दे दो, वो आपको भरपूरता का भरेगा। Jabez was a man of sorrow. और जाबेज व्यक्ति वो दुख का व्यक्ति था, His mother called him pain. और उसकी माँ ने उसे दुख बुलाया। As he grew up, he prayed and he asked God, जिस तरह वो बड़ा परमेश्वर को पूछा वो God, will you जीवन के बारे bless में, me indeed? और कहा परमेश्वर मुझे आशीष करो Enlarge my territory. और मेरी से प्रभु सीमाओं को Keep your बढ़ाओ, hand upon me, आपका हाथ मेरे ऊपर रखो, that I will cause no evil for others. मैं दूसरों को दुष्टता का काम में ना ले Bible जाऊं। says God heard the prayer of Jabez. पवित्र शास्त्र कहता है कि जाबेज का प्रार्थना परमेश्वर ने God सुना, made Jabez as the most honorable person. और याबेज को परमेश्वर ने एक महान आदरणीय व्यक्ति बनाया। I prayed Jabez prayer many times. और मैं प्रार्थना करता हूँ याबेज की I तरह, prayed many times, God bless me. और मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझे आशीष कर, Enlarge my territories. मेरी प्रभु सीमा के तंबुओं को बढ़ा दे, Keep your hand upon me. मेरा ऊपर आपका हाथ रखो, God help me that I will not cause hurt to other people. दूसरों को दुख ना पहुंचाओ, मुझे मदद करो। Even today, that's my prayer.
आज भी मेरी प्रार्थना है Coming of Jesus is very near. और यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत The नजदीक है second coming of Jesus is far nearer than ever before. और दूसरा बार यीशु का आना पहले से भी ज्यादा नजदीक है। How many of you want to give your life to Jesus this कितने morning? आपका जीवन यीशु को देना चाहते Say, हैं God, I offer my life to you. और कहो परमेश्वर मेरा जीवन में आपको Cleanse me सौंपता by हूं। your blood. आपके लहू के जरिए Cleanse me by your blood. आपके लहू से मुझे धो दो। I want to use all my gifts and talents for your name. मेरे गुण और वरदानों को आपके नाम के लिए इस्तेमाल करना I want चाहता to हूँ reflect your glory in this dying world. और प्रभु इस महामारी की दुनिया में प्रभु आपका नाम की प्रशंसा हो Use me पिता। for your kingdom. आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर। How many of you want to make that prayer from the heart this morning? और कितने हृदय की गहराई से प्रार्थना करना The चाहते हैं। presence of Jesus is here right now. यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है He wants to touch you. He wants to take away all the limits from your life. और आपके जीवन से जो भी मुश्किल घड़ी निकालना चाहता है आपको आशीष करना He चाहता wants to है bless you abundantly. बहुत आयत का आशीष करना He चाहता will है take you out of all the shame and fear. आपकी भय आपकी शर्मिंदगी सब बाहर निकालना चाहता है। Jesus, I thank you for each and every one. यीशु हर एक के लिए धन्यवाद। Lord, as we hear the signs of your coming, प्रभु आपके आने के बारे में चिन्ह चमत्कार को as देखते we हैं। see the evidence of your second coming, प्रभु आपके आने के सबूत को जब देखते Lord, हैं help us, oh God, to get closer to you and do all that possible to serve you. प्रभु हमें मदद कर पहले से ज्यादा प्रभु रहे आपके नजदीक और प्रभु हमें सेवकाई में आगे बढ़ा। We will hold nothing for ourselves. हमारे अपने आप के लिए हम कुछ भी इकट्ठा नहीं We करेंगे। give everything to you. जो भी है आप सबको देंगे। आप Use us for your kingdom. हमें आपके राज्य के लिए इस्तेमाल In कर Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष